भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। এরপরে মাননীয় রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয় এবং বিধানসভার বিরোধী দল নেতা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে অনুরোধ করব মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহজিকে উত্তরীয় এবং মোমেন্টো দিয়ে স্বাগত জানানোর জন্য। भारत माता की, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बीजेपी 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 जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद। এরপরে উত্তরীয় দিয়ে স্বাগত করার জন্য অনুরোধ করব মাননীয় রাজ্য সভাপতিকে, মাননীয় প্রদেশের সদস্য তথা সদস্যতা অভিযানের সহপ্রমুখ আছেন দেবতনু ভট্টাচার্য মহাশয়কে। সঙ্গে মাননীয় বিধানসভার বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে উত্তরীয় দিয়ে স্বাগত করার জন্য রাজ্যের সহসভাপতি সম্মানীয় সঞ্জয় সিং মহাশয়কে অনুরোধ করছি। আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক পশ্চিমবাংলার পর্যবেক্ষক মাননীয় সুনীল বনসলজি, তাকে রাজ্যসভার সদস্যতা ইনচার্জ মাননীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয় স্বাগত জানাবেন উত্তরীয় দিয়ে। মাননীয় মঙ্গল পাণ্ডে সুনীল বনসলজিকে, মাননীয় মঙ্গল পাণ্ডেজি বিহার সরকারের মন্ত্রী তথা আমাদের পশ্চিমবাংলার পর্যবেক্ষক, তাকে রাজ্যের সহসভাপতি তথা মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু মহাশয় উত্তর দিয়ে স্বাগত জানাবেন। বাকি মহিলা মোর্চার মাননীয় সভানেত্রী তথা সোনালী দিদি আমাদের রাজ্যের সম্পাদিকা, দুজনকে অনুরোধ করব মঞ্চের উপস্থিত অতিথিগণকে উত্তর দিয়ে স্বাগত করার জন্য। এরপরে আমরা সকলেই উঠে দাঁড়াবো বন্দে মাতরমের জন্য। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी,
सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं भारत माता की भारत माता की भारत माता की ধন্যবাদ। এরপরে মাননীয় রাজ্য সভাপতি ভারত সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়কে স্বাগত ভাষণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। ভারত মাতা কি। সবার হাত উঠছে না, খাওয়া দাওয়া একটু বেশি ভালো হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। বন্দে 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 ভারত মাতা কি। নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। সবাইকে নমস্কার। শুভ বিজয়া এবং আগামীতে শুভ দীপাবলি আসছে, তার শুভেচ্ছা আপনাদেরকে জানাই। মঞ্চে আমরা সৌভাগ্যশালী, আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজি, যিনি প্রত্যেকটি সময় ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার সাথে উনি প্রত্যেকটি সময় পাশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাশে থেকে লড়াই করেছেন। আজকে সদস্যতা অভিযান আমরা চালু করতে চলেছি, সেক্ষেত্রেও উনি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। জোরে হাততালি দিয়ে মাননীয় গৃহমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবেন। আমাদের মাননীয় নেতা যিনি প্রাক্তন সভাপতি, তার আমলে আমরা সর্বোচ্চ সংখ্যায় সদস্য করেছিলাম। গোটা ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত হয়েছিলাম। সেই ব্যক্তি আজকে আমাদের মাঝে আছেন। আমাদের মাঝে আছেন সম্মানীয় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। উপস্থিত আছেন আমাদের 4 জন প্রাক্তন সভাপতি, মাননীয় শ্রী দিলীপ ঘোষ, রাহুল সিনহা মহাশয়, শ্রী তথাগত রায় যিনি প্রাক্তন রাজ্যপাল আবার প্রাক্তন সভাপতি, মাননীয় শ্রী অসীম ঘোষ। এদেরকেও সকলে মিলে হাততালি দিয়ে সকলে বিরোধী দলনেতা থেকে প্রাক্তন সভাপতি পর্যন্ত সকলকে আপনারা স্বাগত জানাবেন। মাননীয় মিঠুনদা আমাদের সকলের মধ্যমণি, সম্প্রতি তিনি দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার পেয়েছেন। মাননীয় মিঠুনদাকে জোরে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানিয়ে অভিনন্দিত করবেন। আমাদের সকলের মহাগুরু, আমাদের সকলের কাছে যিনি দাদার মতো, বড় দাদার মতো ভূমিকা পালন করে এসেছেন। এছাড়া আমাদের মাননীয় সুনীল বানসালজি, যিনি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, মাননীয় মঙ্গল পাণ্ডেজি, আমাদের আরেকজন প্রভারী মাননীয় অমিত মালব্যজি থেকে শুরু করে ঋতুজা সিনহাজি, তিনিও আমাদের মাঝে এসেছেন। তাদেরকেও জোরে হাততালি দিয়ে একবার সবাই মিলে বরণ করে নেবেন। উপস্থিত অন্যান্য নেতৃত্ব যারা উপস্থিত আছেন, আমাদের এই সদস্যতা অভিযানের প্রমুখ মাননীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য, আমাদের পুরাতন নেতা, বহু পুরনো নেতা, তারা উপস্থিত আছেন। সম্মানীয় সাংসদ, বিধায়ক এবং অন্যান্য নেতৃত্ব, জেলা সভাপতি থেকে শুরু করে জেলার বিভিন্ন নেতৃত্ব যারা এখানে উপস্থিত আছেন, তাদের সকলকে গৈরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমি 2-4টি কথা আপনাদের সামনে রাখতে চাই। আজকে মুখ্য বক্তা মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি, তার সামনে আমাদের বলা সাজে না। কিন্তু বন্ধুগণ, আজকে আমরা সদস্যতা অভিযান চালু করতে শুরু করতে চলেছি। আপনারা জানেন যে কয়েকটি নির্বাচনী রাজ্য এবং পশ্চিমবঙ্গ যেখানে আন্দোলন চলছিল, সেই রাজ্যগুলো বাদ দিয়ে সমস্ত রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যতা অভিযান সেপ্টেম্বর মাস থেকে চলছে। 30 দিনে প্রায় গোটা ভারতবর্ষে এই রাজ্যগুলো বাদ দিয়ে 10 কোটির বেশি সদস্য সংখ্যা ভারতীয় জনতা পার্টি পূর্ণ করেছে। এটা ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের শক্তি, ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের সামর্থ্য সেটা প্রমাণ করছে। ভারতীয় জনতা পার্টি আজকে মাননীয় গৃহমন্ত্রীজির তার যে বক্তব্য এবং তারপরে যে সদস্যতা অভিযান শুরু হয়ে যাবে, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখাকে যে কাজ দেয়া হবে বা যে টার্গেট দেয়া হবে গোটা দেশের মতো, সেই টার্গেটকেও প্রত্যেকটি কার্যকর্তাকে, শুধু ভারতীয় জনতা পার্টির সুকান্ত মজুমদার রাজ্য সভাপতি, শুভেন্দু অধিকারী বিরোধী দলের নেতা,
তাদের যে টিম, রাজ্যের যে টিম, শুধু তাই নয়, আমাদের এখানে 4 জন সভাপতি উপস্থিত আছেন, প্রাক্তন সভাপতি। আমি অনুরোধ করব প্রত্যেক সভাপতির সময় যারা রাজ্যের সদস্য ছিলেন, রাজ্য কমিটির পদাধিকারী ছিলেন, রাজ্যের সদস্য ছিলেন, তারা পদে থাকুন না থাকুন, প্রত্যেকেই নিজের নিজের এলাকায় সদস্যতা করুন এবং বিপুল সংখ্যায় সদস্য করে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পশ্চিমবঙ্গের 1 নম্বর রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত করুন। আমরা কিছুদিন আগে আমাদের লোকসভা ভোট সম্পন্ন করেছি। লোকসভা ভোটের নিরিখে 18টি সিট থেকে হয়তো আমরা 12টা সিটে উপস্থিত হয়েছি, কিন্তু আমরা যদি প্রথমবার দেখি, ভালো করে অবজারভেশন করি, আমাদের রেজাল্টকে প্রথমবার আমরা দেখেছি কলকাতার মতো জায়গায় ভারতীয় জনতা পার্টির ভোট বেড়েছে। 46টির বেশি ওয়ার্ডে ভারতীয় জনতা পার্টি 46টির বেশি ওয়ার্ডে কলকাতাতে তৃণমূলকে হারিয়ে প্রথমবার ভারতীয় জনতা পার্টির ইতিহাসে আমরা প্রথম দলে রূপান্তরিত হয়েছি, যা আজ থেকে আগে কোনো আমরা ভাবতে পারিনি। আমরা 208টি বিধানসভায়, আমরা হয়তো কেউ ভালো করে লক্ষ্য করি না, যদি লক্ষ্য করেন ভালো করে, 208টি বিধানসভায় আমাদের প্রাপ্ত ভোট তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোটের থেকে 41,000 ভোট বেশি, কিন্তু আমরা জিতেছি মাত্র 90-92টি বিধানসভায়। কিন্তু 208টি বিধানসভার যদি টোটাল ভোট, বিজেপির প্রাপ্ত ভোট আর তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোট যদি আমরা যোগ করি, তাহলে দেখতে পারবো 208টি বিধানসভায় আমরা তৃণমূলের থেকে 0.1% ভোট বেশি পেয়েছি এবং 41,000 বেশি ভোট পেয়েছি। তাহলে কি হলো, কেন আমরা এতগুলো কম বিধানসভাতে জিতলাম বা লোকসভাতে জিতলাম? 18টি সিট এরকম আছে যাতে দেখা যাচ্ছে 5,000-এর কম ভোটে আমরা হেরে গেছি। 29খানা সিট এমন আছে যাতে আপ টু 10,000 ভোটে আমরা হেরে গেছি। এই 18 এবং 29 এবং তার সাথে 15,000 অবধি যে সিটগুলোতে আমরা হেরেছি, 15,000-এর ব্যবধানে, সেই সিটগুলোকে নিয়ে যদি আমরা এখন থেকে প্ল্যানিং করতে পারি এবং আমাদের বেশি না 3 থেকে 4% ভোট যদি আমরা বাড়াতে পারি, 26-এ ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার তৈরি করবে, সেটা কাউকে বলে দিতে হবে। আমাদের নেতৃত্ব উপরে বসে আছে, ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ব, নিচেও আমাদের সংসদ, প্রাক্তন সাংসদ, আমাদের প্রাক্তন রাজ্য নেতা, বর্তমান রাজ্য নেতা, রাজ্যের পদাধিকারীরা বসে আছে। আমরাই পেরেছি এর আগে এই লক্ষ্য সামর্থ্য পূরণ করতে, আমরাই পারবো এটাকে পূরণ করতে। তাই ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেকটি কার্যকর্তাকে নিজের নিজের এলাকায় আমরা সদস্যতা অভিযানে নামব। আমরা টার্গেট দিয়েছি যে গোটা পশ্চিমবঙ্গে 1 কোটি সদস্য আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিকে বানাতে হবে, তাহলে এই 3% বা 4% ভোটের যে ব্যবধান আছে, সেই ব্যবধানকে আমরা স্পর্শ করতে পারবো। আর তৃণমূল কংগ্রেসের যে অত্যাচারী সরকার আছে, এই সরকারকে উৎখাত করে আমরা বঙ্গোপসাগরে ফেলতে পারবো, এবং সেটা আমাদের দায়িত্ব। আজকে মাঝে মাঝে শুনতে হয়, মাঝে মাঝে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা বলেন ভারতীয় জনতা পার্টি নাকি বহিরাগত পার্টি। আজকে আমি এই মঞ্চ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে মনে করাতে চাই, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি 1951 সালে যে জনসংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই জনসংঘের হাত ধরে ভারতীয় জনতা পার্টি এগিয়ে গেছে। ভারতীয় জনতা পার্টির আদি রূপ ভারতীয় জনসংঘ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হয়তো ভুলে গেছেন, উনি যখন এইচএস পাস করার পর গ্র্যাজুয়েশনে পড়ছিলেন, যে কলেজটাতে পড়ছিলেন সেই কলেজটা পর্যন্ত ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মায়ের নামে, যোগমায়া দেবীর নামে কলেজ। সেই কলেজে পড়ে উনি গ্র্যাজুয়েট করে হয়েছে, কিন্তু তখন হয়তো রাজনীতি করতেন। তার ফলে হয়তো ওনার আর খেয়াল করা হয়নি যে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, যার প্রতিষ্ঠা করা পার্টিকে আমরা বহিরাগত বলছি, মমতা ব্যানার্জি বহিরাগত বলছেন, তার মায়ের নামাঙ্কিত কলেজে তাকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করতে হয়েছে। তাই আমরা পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশেরও অবস্থা দেখেছি। তাই বন্ধুগণ, আমাদেরকে মানুষকে বোঝাতে হবে, সময় আছে, সচেতন হন, বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা নাও। সময় আছে, সচেতন হও, বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা নাও। এই শিক্ষা নিয়ে আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে এবং সেই সদস্যতাকে পূরণ করতে হবে। এই মন্ত্র নিয়ে সবাই এখান থেকে ফিরে যাবেন। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ভারত মাতা কি জয়। ধন্যবাদ মাননীয় রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়কে। আজকে যেরকম আমাদের মেম্বারশিপ ড্রাইভের লঞ্চিংয়ের বিশেষ অনুষ্ঠান আছে, তার মাঝেই আমাদের মঞ্চে আলোকিত করেছেন মঞ্চকে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, রাজ্য কোর কমিটির সদস্য, বিখ্যাত সিনেমার অভিনেতা। আমরা জানি কিছুদিন আগেই তাকে সিনেমা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার দাদা সাহেব ফালকে
সেই পুরস্কারে পুরস্কৃত করে তাকে সম্মানিত করা হয়েছে। সেই বাঙালির গর্ব সম্মানীয় মিঠুন চক্রবর্তী মহাশয়কে আজকে আমরা পার্টির পক্ষ থেকে, পশ্চিমবাংলা ইউনিটের পক্ষ থেকে মাননীয় গৃহমন্ত্রী মহাশয় সম্মানিত করবেন তাকে পার্টির পক্ষ থেকে। আমি মাননীয় গৃহমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব কি আমাদের পশ্চিমবাংলার যে বাঙালির গর্ব মিঠুন চক্রবর্তী মহাশয়কে মানপত্র দিয়ে বাঙালির যে পোশাক পরিচ্ছন্ন ধুতি পাঞ্জাবি শাল দিয়ে তাকে আমরা স্বাগত জানাবো, তাকে সম্মানিত করব, সম্বর্ধনা দেব। জোরে হোক ভারত মাতা কি। আমি ছোট্ট একটা ভিডিও আছে 1 মিনিটের, সেই ভিডিওটা চালানোর জন্য অনুরোধ করছি। আমি মাননীয় মিঠুন চক্রবর্তী মহাশয়কে সংক্ষেপে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। মাননীয় মিঠুন চক্রবর্তী মহাশয়কে আমি সংক্ষেপে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। নমস্কার, চশমাটা খুলে নি আগে। স্টেজে উপস্থিত আমাদের রেসপেক্টেড হোম মিনিস্টার সাহেব অমিত শাহজি আর বাকি সব বড় বড় আমাদের নেতা, তাকে সম্মান। সামনে বসে থাকা আমার সব পূজনীয় লিডার্স, कार्यकर्तास एंड बीजेपी मर के जीतेंगे वाले सब सारे कार्यकर्ता, कुछ बोलने के लिए कहा है। मैं फिल्म के लिए कुछ नहीं बोलूँगा, फिल्म के लिए इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि ये आज का ये सभा हम सदस्य बनाने के लिए सोच रहे हैं। আপনারা সবাই বলেন कि দাদা আপনি সামনে আসুন, আপনি সামনে আসুন, একটু আপনি সামনে আসলে আমি একটা সাহায্য পাই। আমি সামনে আসা মানে লাস্ট ইলেকশনে 37 ডেজ আমি ক্যাম্পেইন করেছি খালি মুড়ি আর গুড় খেয়ে, কিন্তু দ্য রেজাল্ট খুব দুঃখ পেয়েছি। কেন পেয়েছি? এইবার তো সুকান্তদা বললেন আর 3% যদি পাই আমরা জিতব। আপনাদের কাছে একটা আমি প্রমিস চাই, তাহলে আমি আগে আসবো। বলুন আমরা কি 1 কোটি সদস্য করতে পারবো? জোর নেই, গলায় জোর নেই, সত্যি করে বলুন 1 কোটি সদস্য কি আমরা তৈরি করতে পারবো? তাহলে আমিও কথা দিলাম
26 वो मसनत हमारा होगा। कुछ भी करेंगे, 26 ये मसनत हमारा होगा। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा कि ऐसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। लेकिन साथ साथ ये भी बोल रहा हूं, हमको वो कार्यकर्ता नहीं है जो पैसा लेके काम कर रहा है। आपसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप तीनों मुंह जुड़ जाइए, बीजेपी छोड़ दीजिए। पैसा लेके बीजेपी में मत बनिए, पैसा लेके बीजेपी मत बनिए, हमको नहीं चाहिए। लेकिन आज मैं बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूं आपके सामने कि भाई लोग सुन लो, अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है, नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। ये हमको मारेंगे, हमारे भारतीय हिंदू वोटर्स को वोट नहीं करने देंगे और उसी तरह वो जीतेंगे। अगर वो हमारे हिंदू वोटर्स को वोट नहीं दे सकते हैं, नहीं देने देते, तो अगले साल हम भी तैयारी करेंगे कि आपके वो वोटर्स भी वोट नहीं दे पाएंगे। ये मिथुन चक्रवर्ती बोल रहा है। मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता नहीं, वो 68 का मिथुन चक्रवर्ती आपको बोल रहा है, 28 साल का मिथुन चक्रवर्ती। हम राजनीति किए है भैया, खून की राजनीति की हमने, हमको सब मालूम है कौन किधर से क्या करने वाले, सब मालूम है। खाली आपका साथ चाहिए, आपकी हिम्मत चाहिए और वो सीना चाहिए। बस मैं सर से अनुमति ले रहा हूँ, सुनील जी से, मंगल जी से और सर से कि मैं नवंबर से मैं 20 दिन मैं पार्टी के लिए रखूंगा, 10 दिन मैं अपने काम करने के लिए रखूंगा। इसलिए बोल रहा हूं कि काम नहीं करूंगा तो मैं खाऊंगा क्या, तो इसलिए काम तो करना ही पड़ेगा। नवंबर दिसंबर या तो अगले मार्च से जो हमको आदेश देंगे उस तरह से मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा। हर डिस्ट्रिक्ट, हर प्लेस, हर गांव, हर जगह मैं छू कर आऊंगा। वहां मिथुन चक्रवर्ती को नहीं देखेंगे। मैं आप लोगों से यही मांगने जाऊंगा कि आप तैयार हैं? जो बूथ में बैठा है उसको मार के भगा देते हैं। क्यों भगा देते हैं? हम लड़ नहीं पाते, लेकिन हमको अभी वो योद्धा चाहिए जो उस कुर्सी में बैठेगा, बोलेगा मार, हम नहीं जाएंगे। একটু বেশি হিন্দিতে বলে ফেললাম, কিন্তু আপনারা সব বুঝছেন আমি কি বলছি। 1 কোটি ভোট আপনারা দেবেন তো? 1 কোটি মেম্বার্স আপনারা দেবেন তো? তাহলে 26-এর মসনদ আমাদের, আমরা রাজ করব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। ধন্যবাদ।
মাননীয় মিঠুন চক্রবর্তী মহাশয়কে। এরপরে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। সমবেত ভারতীয় জনতা পার্টির বলিষ্ঠ কার্যকর্তা এবং আমার রাষ্ট্রবাদী সতীর্থবৃন্দ, প্রবীণ কার্যকর্তাগণকে প্রণাম, মাতৃশক্তিকে শ্রদ্ধা, সতীর্থ অনুজদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। আমরা যার শুভ হস্তে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি আজকে সদস্যতা অভিযান শুরু করতে চলেছি, ভারতীয় জনতা পার্টির অন্যতম বলিষ্ঠ শক্তিশালী নেতা, ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী, যার হাত দিয়ে 370 ধারা বিলুপ্তি ঘটেছে, ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির এক দেশ এক বিধান এক নিশান যিনি পুরো করেছেন, আমাদের বরেণ্য নেতা শক্তিশালী নেতা অমিত শাহজি, তাকে শ্রদ্ধা এবং প্রণাম জানাই। রাজ্যের সহসভাপতি, ভারত সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মানীয় ডক্টর সুকান্ত মজুমদার উপবিষ্ট আছেন। আমাদের মধ্যে 4 জন প্রাক্তন সভাপতি যারা আমাদের আশীর্বাদক শুভচিন্তক, পরম সম্মানীয় দিলীপ ঘোষ মহোদয়, পরম সম্মানীয় অসীম ঘোষ মহোদয়, পরম সম্মানীয় তথাগত রায় মহোদয়, পরম সম্মানীয় রাহুল সিনহা মহোদয়। আমাদের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব সুনীল বানসালজি, যার নেতৃত্বে পরিচালনায় আমরা পাশের রাজ্য উড়িষ্যা জিতেছি, 26-এ বাংলা জিতব। বিহার সরকারের মন্ত্রী আমাদের অবজারভার মঙ্গল পাণ্ডেজি, সহপ্রভারী আইটি প্রমুখ অমিত মালভিয়াজি, এছাড়াও আমাদের ঋতুরাজ সিনহা এসেছেন, আমাদের মন্ত্রী মানে সম্পাদক বিজেপির, যিনি সদস্যতা অভিযানের দায়িত্বপ্রাপ্ত, এবং যাকে আমরা বাংলা বাঙালির গর্ব বলি, আমাদের আইকন মিঠুন চক্রবর্তী দাদা, আমি দাদাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। আমরা মাননীয় নেতাকে বসিয়ে রেখে বেশি কথা বলবো না, কারণ আমরা নেতার কথা শুনব, আমাদের দায়িত্ব বুঝে নিয়ে আমরা কাজ করব। আমি শুধু আপনাদের কাছে বলতে চাই, মাননীয় রাজ্য সভাপতি 1 কোটি সদস্যের লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, আমরা সেটা যাতে পূরণ করি, এ কাজটা আমাদের সকলকে করতে হবে। ভারতীয় জনতা পার্টি 235 জন কর্মী শাহাদাত বরণ করে শহীদ হয়ে পশ্চিম বাংলায় এই অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, এবং আমরা পার্টি প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে এবারে আসন সংখ্যার নিরিখে আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিনি, কিন্তু আমরা সর্বোচ্চ ভোট 2,33,27,000 ভোট পেয়েছি, যে ভোটের 100% সনাতনী এবং জনজাতিদের ভোট। এই ভোটে এতটুকু জল নেই এবং এই ভোটে অন্য কারোর ভোট নেই। তাই আমাদের এটা ধরে রেখে এগোতে হবে। আমাদের মাননীয় রাজ্য সভাপতি তার বক্তব্যে সেটা বলেছেন। আমি আপনাদের কাছে বক্তব্য বাড়াতে চাই না। প্রত্যেক দিন আমি পার্টির নির্দেশে আপনাদের সঙ্গে থেকে বিধানসভার ভিতরে এবং বাইরে আমরা লড়াই করি। আগামী দিনে এই লড়াইয়ের তীব্রতা
আরো 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 বাড়াতে হবে এবং ভারতীয় জনতা পার্টিকে বুথে পৌঁছে দিতে হবে। আমি আপনাদের কাছে বলবো, সনাতনীদের এক করুন। আমি আমার নিজের বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রাম, যেখানে পার্টি আমাকে লড়িয়েছিল মমতা ব্যানার্জিকে হারানোর জন্য, আমি 2021-এ 65% হিন্দুকে এক করেছিলাম, 1956 ভোটে মমতা ব্যানার্জিকে হারিয়েছিলাম। এবারে আমি 72% হিন্দুকে এক করেছি নন্দীগ্রামে। আমাদের প্রার্থী অভিজিৎ গাঙ্গুলি 8200 ভোট লিড পেয়েছে ওখান থেকে। আসুন আমরা সবাই মিলে এই বাংলার 80% হিন্দুকে ঐক্যবদ্ধ করে এই রাজ্যের এই যে জঙ্গল রাজ খতম করি। পশ্চিমবঙ্গকে দ্বিতীয় বাংলাদেশ হতে দেব না। ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি হিন্দুদের জন্য এই পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে গেছেন, এই পশ্চিমবঙ্গে অন্য কিছু করতে দেব না। এটাই আমাদের আজকের শপথ হওয়া উচিত। তাই হরিয়ানা দেখিয়ে দিয়েছে, হরিয়ানাতে বাঁটেগা তো কাটেগা, এক रहेगा তো নেক रहेगा স্লোগানে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তাই हरियाणा का जीत हमारी है, 26 में बंगाल का बारी है। हरियाणा का जीत, हरियाणा का जीत, हरियाणा का जीत, हरियाणा का जीत 26 में, 26 में, 26 में जीतना होगा। उसकी पहले झारखंड भी दिलाना होगा। আমাদের 50 লক্ষ বাংলা বাঙালি ভাষীরা থাকেন জামশেদপুর, চাইবাসা, বোকারো, সব জায়গায়। ঝাড়খণ্ড জিতব, তারপরে এই বাংলা দখল করব আমরা। ভোটে জিতে বাংলার মা, বোন, বেটিদের সম্মান আমরাই রক্ষা করব। বিজেপির একমাত্র স্লোগান সুরক্ষা আর সুশাসন। সবাই ভালো থাকবেন, জোরসে বলুন দফা 1 দাবি 1, দফা 1 দাবি 1, দফা 1 দাবি 1। স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে দফা 1 দাবি 1। সবাই ভালো থাকবেন। ভারত মাতা কি জয় শ্রীরাম। কতগুলো দুর্গা মূর্তি ভেঙেছে জানেন তো? শ্যামপুরে ভেঙেছে, বাউড়িয়া ঢিল মেরেছে, গার্ডেন রিচ ডালখোলায় দুর্গা মণ্ডপে ঢুকেছে। ছাড়ব না আমরা। জয় জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। ধন্যবাদ মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে। আজকে যে জন্য আমাদের এই অনুষ্ঠান সদস্যতা অভিযানের আনুষ্ঠানিকভাবে যে লঞ্চিং, মেম্বারশিপ ড্রাইভ লঞ্চিং মাননীয় যশস্বী গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহের হাত দিয়ে হবে। আমি মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহ মহাশয়কে অনুরোধ করব রিমোটের বটম টিপে আনুষ্ঠানিকভাবে আজকের যে অনুষ্ঠান, যার জন্য সারা পশ্চিমবাংলার ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা অপেক্ষায় আছে, এখানের সঙ্গে সঙ্গে সারা পশ্চিমবাংলাতে প্রত্যেকটি মণ্ডলে আজকে 8800002024 এই নাম্বারে মোবাইলের মাধ্যমে মিস কল দিয়ে মেম্বারশিপ যে ড্রাইভ তার শুভ সূচনা হলো। আমি এখন আমাদের পশ্চিমবাংলার 4 কার্যকর্তা রিপন বিশ্বাস মহাশয়, সঞ্জীব ওরাং মহাশয়, সঙ্গীতা বাগ মাইতি মহাশয়া, লক্ষ্মী শর্মা মহাশয়া, তাদের হাতে সদস্যতার যে কার্ড দেওয়ার জন্য
মাননীয় রাজ্য সভাপতি, মাননীয় বিধানসভার বিরোধী দল নেতা, সদস্যতার যে ইনচার্জ শ্রমিক দা এবং রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীলজিকে অনুরোধ করব তাদের হাতে দিয়ে সদস্যতা করানো। भारत माता की, बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। এরপরে সংবাদদাতা বন্ধুদের কাছে অনুরোধ আমার কি আমরা সকলেই বাইরে অপেক্ষা করব। আপনারা থাকতে পারেন। মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহ মহাশয়কে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है आपकी आवाज को? मोदी जी दिल्ली में है, वहां तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए। 1 करोड़ सदस्य बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, वंदे वंदे। ये पत्रकार बंधु जरा सेट कर बैठ जाइए, मैं यहीं रहकर बोलने वाला हूं। प्लीज बैठ जाइए, सेट कर बैठ जाइए सारे लोग। भैया मैं यहीं रहकर बोलने वाला हूं, बैठ जाओ। मंच ऊपर उपस्थित, बस भाई ओ अब रहने दो। मंच पर उपस्थित सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजमूदार जी, मेरे मित्र और विपक्ष के नेता श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री सुनील बंसल जी, हमारे प्रभारी श्रीमान मंगल पांडे जी, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर जी, अभी अभी हमने जिनका सम्मान किया, कला जगत में इतनी लंबी यात्रा और सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ऐसे हमारे नेता मिथुन चक्रवर्ती जी, हमारे सभी पूर्व अध्यक्ष श्री दिलीप घोष जी, राहुल सिन्हा जी, सम्माननीय तथागत जी, श्री असीम घोष जी, श्री अमित मालवीय जी, ऋतुराज जी, हमारे सदस्यता के प्रभारी समीक भट्टाचार्य जी, ज्योतिर्मय महतो जी, हमारे संगठन मंत्री अमिताभ चक्रवर्ती जी, संगठन के सह संगठन मंत्री सतीश जी, और आज इस सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे सारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले मैं बंग भूमि को प्रणाम करता हूं। यही भूमि ने इस देश को कई संकट के समय पर रास्ता दिखाने का काम किया है। जब जब भी देश संकट में आता है, रास्ते के लिए पूरा देश यही बंग भूमि के सामने आशा भरी नजरों से देखता है।
ये भूमि के महान सपूत कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, खुदीराम बोस और अनेक अनगिनत मां भारती की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले, भारतीय संस्कृति और कला जगत को दिशा देने वाले, विज्ञान के सभी विधाओं में देश को यश दिलाने वाले बंगाल के सभी महासपूतों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यही भूमि है जहां हमारी पार्टी की शुरुआत हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यही बंग भूमि के सपूत जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और आज उन्होंने बिया हुआ एक बीज आज वटवृक्ष बनकर समग्र विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर हम सबके सामने, हम सबको गर्व है कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जो पार्टी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। हम सबको गर्व है कि हम उस दल के सदस्य हैं जो दल भारत की राजनीति के सभी दलों में अलग प्रकार का दल है, अनूठा दल है। भाइयों बहनों, जब आज सदस्यता अभियान चालू हो रहा है तब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 2024 की सदस्यता 10 करोड़ के आंक को पार कर गई है। 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य। बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया था कि हम दुर्गा पूजा के बाद, विजयादशमी के बाद सदस्यता अभियान को चालू करेंगे। तो बंगाल में सदस्यता अभियान बाकी देश से थोड़ा लेट चालू हो रहा है, मगर मुझे बंगाल के कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि भले हम सम्मान करते हुए दुर्गा पूजा का, विजयादशमी का सदस्यता लेट चालू करे, मगर मेरे बंगाल के कार्यकर्ता सदस्यता में देश के पीछे नहीं रहेंगे और 1 करोड़ का लक्ष्य हमें जो दिया है वो पारे। देश भर में जब कार्यकर्ता सदस्यता अभियान चलाने जाते हैं तब हम हमारी पार्टी की लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करते हैं। हमारी पार्टी में सदस्यता किसी को आजीवन नहीं होती। 6 साल के बाद हर एक मेंबर की सदस्यता समाप्त होती है। हम पार्टी को भी मौका देते हैं कि हमारे काम को देखकर हमें सदस्यता बनाए या न बनाए वो निर्णय करे, और मेंबर को भी मौका देते हैं पार्टी के काम को देखकर फिर से जुड़ना या न जुड़ना वो निर्णय करे। इतनी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अलावे देश में एक भी नहीं है। भाइयों बहनों, ये जमाना पूरे राजनीतिक दलों का इतिहास उठाकर देखे, सारे दल जाति के आधार पर चलते हैं, परिवार के आधार पर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री हो तो प्रधानमंत्री एक अदना सा कार्यकर्ता होता है जिसका और कोई बैकग्राउंड नहीं होता। कार्यकर्ता को महान बनाने वाली, कार्यकर्ता को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है जिसकी नींव में लोकतांत्रिक विश्वास है। जब भारतीय जनता पार्टी ने अरे भाई बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ, जरा सेट करके बैठ जाइए भैया। चलो अंदर आ गए हो ना, बाहर बाहर क्या कर रहे हो, सेट करके बैठ जाओ। जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तब भारतीय राजनीति में एक नया रिकॉर्ड हुआ। एक ऐसा कार्यकर्ता जो 1982 में बूथ का अध्यक्ष था, वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर पार्टी का नेतृत्व। मैं आज बंगाल भर के
कार्यकर्ताओं को यही कहने आया हूं कि हम जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनते हैं, इस देश की वो महान करने की प्रक्रिया में अपने आप जुड़ जाते हैं। हम जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनते हैं, इस देश के सुरक्षा के संकल्प के साथ हम अपने आप को जोड़ देते हैं। हम जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनते हैं, करोड़ों गरीबों के कल्याण के साथ हम अपने आप को जोड़ देते हैं। और जब हम भारतीय जनता पार्टी को सदस्य बनते हैं, भारत माता को विश्व गुरु बनाने के संकल्प के साथ भी हम अपने आप को जोड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनना ये राजनीति में ऊपर चढ़ने की सीढ़ी नहीं है, राष्ट्र को महान बनाने की यज्ञ में आहुति बनना है। और इसलिए मैं बंगाल की जनता को और विशेषकर युवाओं को कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनिए और भारत को महान बनाने की प्रक्रिया में जुड़िए और सोनार बांग्ला बनाने की प्रक्रिया में भी जुड़िए। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना मतलब कवि गुरु की कल्पना का बंगाल की रचना करना है, सुभाष बाबू की कल्पना का बंगाल की रचना करना है। देश भर में जब आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं, तब केवल भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ जुड़कर राष्ट्र यज्ञ में आप शामिल होते हैं, मगर बंगाल में जब आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं तो भाइयों बहनों, बंगाल को कम्युनिस्ट और ममता दीदी के आतंक से मुक्त कराने के एक यज्ञ के साथ भी आप जुड़ते हैं। मैं आज बंगाल के युवाओं को कहने आया हूं, एक सीमांत राज्य है, सीमांत राज्य के अंदर घुसपैठ जिस तरह से स्टेट स्पॉन्सर घुसपैठ हो रही है, उसको रोकना है तो इसका एकमात्र रास्ता है कि 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बंगाल के अंदर रविंद्र संगीत की जगह बम धमाके सुनाई पड़ते हैं, इसको रोकना चाहते हैं बंगाल की जनता, तो इसका एकमात्र रास्ता है 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना। गौ तस्करी, कोयला तस्करी, इसको रोकने का एकमात्र रास्ता है बंगाल में 1 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाना। भ्रष्टाचार, नौकरी देने में भी भ्रष्टाचार, मनरेगा में भी भ्रष्टाचार, अनाज बांटने में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की सेवाओं में भी भ्रष्टाचार, कटमनी का जो बोलबाला बंगाल में हुआ है उसको समाप्त करने का एकमात्र रास्ता है बंगाल में 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। और जो सिंडिकेट की गुंडागर्दी बंगाल के अंदर है, बंगाल के अंदर माताओं बहनों के सम्मान को तार तार कर दिया जाता है, चाहे संदेश खाली की घटना हो, चाहे आरजी कार की घटना हो, इसको बंद करना है तो इसका एकमात्र रास्ता है यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव अभियानों से नहीं बनती। अभी मिथुन दा कह रहे थे ये जुर्म करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, वोट नहीं डालने देंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को हमला करेंगे। कई कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, मगर आज मैं कहकर जाता हूं बंगाल की जनता और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बंगाल के कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यहां एक बार फिर से सोनार बांग्ला बनेगा और मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगा। और 26 का चुनाव आने वाले सभी समय के चुनाव, गए हुए सभी चुनावों में एक मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। 26 के चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार बनने वाली है। और मित्रों, जब सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, तब हमने देश भर में देखा है, हम देश भर में विस्तृत हुए। पहले सिर्फ उत्तर में थे, पश्चिम में गए, फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर गए और अब दक्षिण में भी पैर पसार रहे हैं, उड़ीसा भी पहुंच चुके हैं। हम जब जब सरकार बनाते हैं इसकी नींव हमारा सदस्यता अभियान और संगठन होता है। और इस सदस्यता अभियान की आज शुरुआत हो रही है। हमने
1 करोड़ सदस्य बनाने के लिए हमने अपना पूरा जोर लगा देना है। ममता दीदी, अभी हमारी कुछ सीटें कम आई, बड़े उत्साह में है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा उनका गति धीरे पड़ गया है। ममता दीदी, मुगालते में मत रहना। हम तो वो पार्टी है जो 2 सीट आने के बाद 370 लाने का और 370 हटाने का हौसला रखते। हम वो पार्टी हैं। हम वो पार्टी है जो उद्देश्यों के लिए काम करती है। भतीजों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम काम नहीं करते हैं। ममता दीदी, हमारा राजनीति में आने का उद्देश्य है ये बंगाल को भारत माता की सीमाओं की अभेद सुरक्षित दीवार बनाना और बंगाल को भाजपा का गढ़ बनाना, वो हमारा उद्देश्य है। आप ये परिणाम देखकर कुछ समय तो जरूर खुश कर लीजिए, मगर हम जब चुनाव के मैदान में उतरेंगे नए खून के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए सदस्यों के साथ और भारत माता की जय और जय श्री राम के जयकारे के साथ हमें आप रोक नहीं पाओगी। 26 में यहां भारतीय जनता पार्टी का चुनाव सरकार बनने वाला है। भाइयों बहनों, मैं अभी ये राहुल बाबा एंड कंपनी, जिसमें ममता दीदी भी शामिल है, बहुत खुश हो रहे हैं। इनको मैं बताना चाहता हूं कि आप स्वप्न देख रहे थे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर गई। आप स्वप्न देख रहे थे ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर गई। आप अभी स्वप्न देख रहे थे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का काम हरियाणा में करा है। और मैं आज बंगाल के कार्यकर्ताओं को कहकर जाता हूं, महाराष्ट्र और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भाइयों बहनों, 2024 के लोकसभा के चुनाव में राहुल बाबा संसद में बोलते हैं कि हमने हरा दिया, हरा दिया, हरा दिया। मुझे तो मालूम नहीं है राहुल बाबा को उनके साथी भी क्यों नहीं समझाते हैं। राहुल बाबा जो हारता है वो विपक्ष में बैठता है और वो जो जीतता है वो प्रधानमंत्री की शपथ लेता है। इतनी सामान्य बात भी आपको मालूम है। मैं आपको बताने आया हूं, इंडिया अलायंस वाले सारे नेताओं को, इस देश में 60 साल के बाद, इस देश में 60 साल के बाद कोई एक नेता के नेतृत्व में कोई भी पार्टी तीसरी बार लगातार सरकार बनाई है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। हम 240 आए, मखौल उड़ाते हो, अहंकार में आ गए हो। राहुल बाबा 14, 19 और 24 तीनों चुनाव का आपका टोटल भी 240 नहीं होता है, आपका टोटल भी 240। और आप जितने साथी हो वो सबका टोटल भी 240 से कम है, मगर उनका तो गणित ही अजीब है। वो कहते हैं कि हम चुनाव जीते हैं, हम चुनाव जीत गए, हम चुनाव जीत गए। अब उनको अपने स्वर्ग में रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बताने आया हूं, 2024 के चुनाव में 7 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिला है। 4 राज्यों के अंदर क्लीन स्वीप हुई है और 4 राज्यों में 90% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है और राज्यसभा में भी हमारा बहुमत हो गया है। भाइयों बहनों, 60 साल के बाद लगातार तीसरी बार कोई एक व्यक्ति को, कोई एक नेता को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को बनाया है, नरेंद्र मोदी। और मैं आज यहां बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला सबसे बड़ा अगर कोई लक्ष्य है तो 2026 में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
आप जरा भी मत घबराना। इनके अत्याचारों से, इनके संतरास से, इनके जुर्म से भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में ऐसे जुर्मियों को उठाकर अपनी सत्ता प्राप्त की और गरीब कल्याण का महायज्ञ भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। 10 साल के अंदर देश के 60 करोड़ गरीबों को घर में बिजली, घर में शौचालय, गैस का सिलेंडर, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख तक की दवाइयां मुफ्त और बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था अगर करने का काम किसी ने किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज सुबह मैं गया था बॉर्डर पर, कुछ लोग मिले, उन्होंने मुझे कहा कि भाई हमारे यहाँ आयुष्मान भारत का अमल हमें फायदा नहीं मिलता है। मैंने बोला चिंता मत करो, 2026 तक धैर्य रखो। 75 साल से धैर्य रखा है, 2026 से बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का फायदा मिलने की शुरुआत हो जाएगी। हर गरीब का 5 किलो अनाज सिंडिकेट की भेंट नहीं चढ़ेगा। मनरेगा का पैसा किसी पार्टी के चुनावी फंड में नहीं जाएगा। नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए युवाओं को लाखों रुपए की रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। पूरा हरियाणा का चुनाव हम एक ही मुद्दे पर जीते हैं और वो मुद्दा है खर्ची पर्ची के बगैर नौकरी देना। कोई खर्चा भी नहीं होता, कोई सिफारिश भी नहीं होती, डाकिया घर में अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आ जाता है। मैं बंगाल के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, पारदर्शी तरीके से अगर नौकरियां लेनी है तो केवल और केवल ये भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी नाबूद करे। भाइयों बहनों, ममता दीदी हम पर आरोप लगाती कि मोदी जी बंगाल में विकास नहीं होने देते, अन्याय कर रहे हैं। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से करोड़ों कार्यकर्ता देख रहे हैं, उनके सामने ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक इंडिया अलायंस की सरकार रही, आप इसका समर्थन कर रही थी, कितना पैसा दिया इंडिया अलायंस ने बंगाल को? 10 साल तक 2004 से 14 तक रही, वो जवाब नहीं देती है। मैं आज जवाब देता हूं बंगाल की जनता को, 2004 से 14 तक 2,09,000 करोड़ रुपया 10 साल में यूपीए की सरकार ने, इंडिया अलायंस की सरकार ने दिया। और ममता दीदी अब कान खोल कर सुन लो, 14 से 24 मोदी जी की सरकार चली, एनडीए की सरकार चली, भाजपा की सरकार चली। आपने 10 साल में 2,09,000 करोड़ रुपया दिया था। मोदी जी ने 10 साल में 2,09,000 करोड़ के सामने 7,74,000 करोड़ रुपया बंगाल को दिया। और पाई पाई का मेरे पास हिसाब है ममता दीदी, पाई पाई का हिसाब। आप कोई तिथि तय कर दो, हमारे युवा मोर्चा का, भाजपा का अध्यक्ष बंगाल का आपके सामने हिसाब लेकर आ जाएगा और आपको पाई पाई का हिसाब। अब बंगाल की जनता को गुमराह कर रहे हैं। कितने साल से बांग्ला भाषा को, क्लासिकल लैंग्वेज की मांग कितने साल से पेंडिंग थी? आपने कुछ नहीं किया। बंगाली भाषा को अगर क्लासिकल लैंग्वेज बनाने का काम किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने, कवि जयदेव, महाकवि चंडीदास, बंकिम बाबू, कवि गुरु रविंद्रनाथ जी और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के स्वप्न को पूरा करने का काम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। और जब हमने बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का, क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया, ममता जी इतनी स्पिरिट भी आप नहीं दिखा पाई कि देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करे, आभार जताएं। भाइयों बहनों, ये जो पॉलिटिक्स की शुरुआत ममता जी ने बंगाल में करी है, उसका अंत हमें 2026 के चुनाव में करना है। वो कह रही है कि मनरेगा में अन्याय हो रहा है। मैं आज आंकड़े लेकर आया हूं, दीदी कान खोल कर सुन लो। यूपीए में 10 साल में मनरेगा के लिए 15,000 करोड़ रुपया दिया और एनडीए ने 10 साल में 15,000 करोड़ के सामने
54,000 करोड़ रुपीस, 54,000 करोड़ रुपया देना का। मगर दीदी ये 15,000 हो या 54,000 हो, वो बेचारे मनरेगा के मजदूरों के हाथ में नहीं पहुंचा। आपकी सिंडिकेट बीच में ही चाऊ कर गई है। मैं बंगाल के मजदूरों को विश्वास दिलाने आया हूं, मनरेगा के लाभार्थियों को विश्वास दिलाने आया हूं। 2026 में परिवर्तन कर दीजिए, पाई पाई मनरेगा की आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगी, कोई बीच में से नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपने 5400 करोड़ दिया, मोदी जी ने 17,000 करोड़ दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना आपने 4500 करोड़ दिया, मोदी जी ने 50,000 करोड़ रुपया दिया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बैंक के लोन 630 करोड़, मोदी जी ने 91,000 करोड़ दिए। कहीं कोई मैच नहीं है ममता दीदी, क्या झूठ बोल रही हो? क्या बंगाल की जनता को गुमराह कर रही हो? आप मानती हो कि बंगाल की जनता कुछ जानती नहीं है? हम आज कह कर जाते हैं दीदी, भारतीय जनता पार्टी के 1 करोड़ सदस्य बनने वाले हैं। हम कम थे तब भी नाकों में पानी ला दिए थे। 1 करोड़ क्रॉस हो जाएंगे, आपकी पार्टी का क्या होगा वो आप सोच कर रखो। भाइयों बहनों, आज इस संगठन पर्व की यहां पर शुरुआत हो रही है। उस वक्त मैं बंगाल भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को कहने आया हूं, देश भर में सदस्यता अभियान का एक मतलब है और बंगाल में सदस्यता अभियान के कई मतलब हैं। देश भर में सदस्यता अभियान का मतलब है संगठन को मजबूत करना, पार्टी को आगे बढ़ाना, हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाना, हमारी चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। बंगाल के अंदर सदस्यता अभियान का मतलब है घुसपैठ को रोकना, बम धमाकों को रोकना, गौ तस्करी को रोकना, कोयला तस्करी को रोकना, माताओं बहनों के अपमान को रोकना और जो रैंपड करप्शन चल रहा है वो रैंपड करप्शन को भी समाप्त करना। अगर सोनार बांग्ला बनाना है तो हमारे पास एक ही विकल्प है। लाल भाइयों को भी लंबा समय सत्ता दिया, कांग्रेस ने भी लंबा समय काम किया और तृणमूल का भी बहुत समय हो चुका है, समय भी अब उनका समाप्त हो चुका है। अब एक ही विकल्प बचता है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए मैं आज बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करने आया हूं कि यहां पर कानून का शासन प्रस्थापित करने के लिए, यहां पर बंगाल की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए, दुर्गा पंडालों के सम्मान की रक्षा करने के लिए, माताओं बहनों के सम्मान की रक्षा करने के लिए एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी बनानी है। आने वाले समय में हर घर, हर गांव, हर गली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएं और इस नंबर को प्रेस कराकर बंगाल की जनता को, विशेषकर बंगाल के युवाओं को और माताओं को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाए। उस वक्त आप पर जो एसएमएस आएगा उसमें एक फॉर्म होगा जिसमें सदस्य की डिटेल डालनी है। वो डिटेल भी भर कर दीजिए जिससे उनको आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने की एक प्रक्रिया हो, भारतीय जनता पार्टी के काम को गति देने की एक प्रक्रिया हो। हर घर में जाइए, युवाओं को, महिलाओं को, हर कॉलेज के अंदर युवाओं को, युवतियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनाइए। मनरेगा के पीड़ित मजदूर, बंगाल के गरीब बीमार और जिसको नौकरी चाहिए, जो भ्रष्टाचार से परेशान हो गया है, वो युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़िए। जिनके सम्मान के साथ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता खिलवाड़ कर रहे हैं, वो माताओं बहनों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए। यहां पर धान की खरीदी नहीं होती है, धान की खरीदी जिन किसानों की नहीं होती है वो किसानों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़िए। और बंगाल भारतीय जनता पार्टी के जो सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जान देकर अपना बलिदान दिया है, वो हुतात्माओं को याद कर कर अपने 1 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करिए। मुझे बताइए भाइयों बहनों,
1 करोड़ का लक्ष्य बंगाल भारतीय जनता पार्टी का पूरा होगा या नहीं होगा? अरे जोर से बोलिए, होगा या नहीं होगा? हम घर घर जाएंगे क्या? हर युवा, महिला, किसान, मजदूर को सदस्य बनाएंगे क्या? 1 करोड़ सदस्य की भारतीय जनता पार्टी बनाएंगे। 26 में प्रचंड विजय की नींव डालने का काम करेंगे। भारत को महान बनाने के मोदी जी के अभियान के साथ बंगाल जुड़ेगा। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, और 1 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करने के संकल्प की मुट्ठी भींचकर बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मिथुन दा को फिर से एक बार अभिनंदन और बधाई। অশেষ অশেষ ধন্যবাদ মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহ মহাশয়কে। এরপরে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য রাজ্যের সহসভাপতি মাননীয় সঞ্জয় সিং মহাশয়কে অনুরোধ করছি। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। আমরা সকলে উঠে দাঁড়াবো, জাতীয় সঙ্গীত হবে, তারপরে প্রোগ্রাম সমাপ্ত হবে। জাতীয় সঙ্গীত। জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্য বিধাতা। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, बिंदु हिमाचल যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গ, তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে, গাহে তব জয় গাথা। জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্য বিধাতা। জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয়।